Hi everybody. Today we are going to learn about 6 standards English Bal Bharti. The name of lesson is Who's the Greatest? You can see children in the end of the um, in the end of the name of the lesson question mark. This shows that this line is a intricative sentence. Next, so come on the first paragraph. Emperor Akbar or Akbar the Great was known as one of the greatest ruler in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a great human being. He cared for his subjects. He had great respect for scholars, poets, writers, and artists belonging to different religions. He was a patron of art and culture. The 9 gems or 9 ratnas, no ratnas, in his court were famous. Many people believe that of these 9 gems, Birbal was the closest to the emperor's heart. Emperor Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. The very first stanza tells us that अकबर और द अकबर ग्रेट एक बहुत महान राजा थे एंड ही वॉज हैविंग अ वेरी वास्ट एम्पायर. वास्ट एम्पायर मीन्स बहुत बड़ा राज था उनके पास. अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी. उनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, जैसे कि आज भी इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है. द सेम वे अकबर वॉज ऑल्सो हैविंग इन हिज टाइम अनटोल्ड वेल्थ. इतना वेल्थ जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता, बट बिकॉज ही वॉज अ एंड सबसे अच्छी बात क्या थी, ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग. वो अपने सब्जेक्ट्स प्रजा के लिए का बहुत केयर करते थे. वो किनका रिस्पेक्ट करते थे? स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स का, राइटर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन. वो ये नहीं था कि वनली अपने रिलीजन के लोगों को ही पसंद करते थे, अलग अलग रिलीजन के लोगों को भी वो पसंद करते थे. He was a patron of art and culture. Patron means guardian, like our parents, the same way. He was. 9 gems और 9 रत्नास इन his court were famous. उनके कोर्ट में 9 gems और 9 रत्नास. 9 gems इज कॉल्ड इन हिंदी 9 रत्नास. बहुत फेमस थे, जिनमें कहा जाता है या माना जाता है ऐसा कि बीरबल वॉज क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट. और हर बार अकबर डिफरेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पोज करते थे कोर्ट में, और उतना ही इंटरेस्टिंग आंसर बीरबल हर बार उनको देते थे. इसलिए रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बीरबल ऑलवेज गिव्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर वट एवर द क्वेश्चन अकबर आस्क in the court. He don't know whether all the Akbar and Birbal stories, we don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we have heard today have any basis in history. They have been handed over generations mainly by words of mouth. हमें कुछ नहीं पता है कि जो स्टोरीज़ आज हम फॉलो करते हैं, इसका हिस्ट्री में किधर कहीं पे भी कुछ अनुमान या कहीं पे लिखा हुआ कुछ मिलता है. बट ये सारी एक दूसरे को कहानियाँ सुनाई गई हैं. जनरेशन्स बाय जनरेशन्स कहानियाँ एक दूसरे को बाय माउथ बोला गया है. देर आर 2 ऑफ देम. उन्हीं में से 2 स्टोरीज़ हैं जो राइटर यहाँ पे हमें बताने जा रहा है. वन डे द एम्परर एंटर द कोर्ट. One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. As soon as he was seated, he said, I have a question for all of you. What would be the punishment for someone who pull my mistake? उनका क्वेश्चन था कि क्या होगा उसके लिए पनिशमेंट में जो मेरा मिस्टेक को खींचेगा. द कोर्ट वॉज स्टन्ड. पूरा कोर्ट शांत हो गया था. स्टन्ड मीन्स क्वाइट. Pull the emperor's mistake? You can see, children, here is a exclamation mark. This tells us that it's a extreme emotion. So here
exclamation mark is used and it is a exclamatory sentence. It was unheard of. ये तो सुना ही नहीं गया कि कोई किसी राजा का भी मिस्टेक खींच सकता है. Flog him, give him 50 laces of whip, exclaimed one nobleman. उन्हीं में से एक ने बोला कि इसको flog him, चाबुक से मारो. 50 laces means 50 कोड़ों से मारो. That's not enough. ये भी कम है. Put him in jail without food and water. उसको जेल में डाल दो बिना खाना और पानी के. He's another said. Whip him, beat him up, hang him, cut off his offending hands. कोड़े से मारो, लटका दो और उसके हाथों को काट दो. The agitated courtier begin to cry out. चिल्लाने लगा. Agitated means degraded और अपमानित. कोटिया चिल्लाने लगा. Only Birbal was silent. Who was silent? Birbal was silent. He was even smiling a little. To give the answer of this question, on that he was smiling. Who? Birbal was smiling. What do you say, Birbal? Then Akbar asked Birbal. आप क्या बोलते हो बीरबल? What is your opinion? आपका क्या opinion है? In my opinion, oh giver of peace to the world, the offender should be given his favorite sweet meal. What should give to the offender? Sweet meal, Birbal said. Why he said like that? We have to see that. Raja Birbal, are you out of your mind? अकबर सेड दैट. अकबर ने कहा बीरबल को, क्या तुम्हारा दिमाग नहीं है? गिव स्वीट मील सच अ ग्रेव ऑफेंस. इतने गंदे. ग्रेव मीन्स एक्चुअली हियर ग्रेव मीन्स वेरी बैड थिंग, बट एक्चुअल ग्रेव मीनिंग इज कब्र, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है. cenotaph it is calling. The courtiers began to say. Birbal smiled and offered an explanation. Yes, you would be so bold as to pull the emperor's mistake. Only his grandson. Who would be so bold as to pull the emperor's mistake? Only his own grandson. कौन करेगा ऐसा काम? कौन कर सकता है ऐसा काम? सिर्फ और सिर्फ उनका ग्रैंडसन कर सकता है. When Akbar heard this, that is exactly what had happened in the morning. जब उन्होंने यह सुना अकबर ने, तो यही सेम चीज़ सुबह सुबह हुआ था. On another occasion, Akbar was relaxing. On other occasion, Akbar was relaxing with some of his courtiers. A few of them thought that was a good opportunity to shower praise on the emperor and get some favor from him. They began to compete with each other in praising Akbar. एक दिन की बात है जब अकबर अपने कोर्ट में अपने कोर्टियर के साथ रेस्ट कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे. उसी समय उनके कोर्टियर को सूझा कि दिस इज़ द राइट टाइम. हम क्या कर सकते हैं? किंग का फेवर ले सकते हैं. एंड दे बिगेन प्रेज करना उन्होंने चालू कर दिया. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग. किसी ने बोला उसमें में से कि आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छे राजा हो. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग और एम्परर दैट इवन लिव्ड ऑन द अर्थ. आप इतने अच्छे हो कि आप जैसा कोई राजा आज तक हुआ ही नहीं. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन द हेवन और अर्थ. आप इतने अच्छे हो कि आप जैसा ना तो हेवन में है ना तो अर्थ पर है. यू आर एज ग्रेट एज गॉड ऑलमाइटी. आप इतने अच्छे हो जितने कि एक भगवान हैं. यू आर ग्रेटर दैन द गॉड ऑलमाइटी. और उसी में एक ने बोल दिया कि आप तो भगवान से भी ज़्यादा अच्छे हो. नाउ अकबर वॉज नो फूल. No fool, he did not care for false praise. He stopped the courtiers and asked, Do you all believe so? अकबर क्योंकि फूल नहीं थे,
ही नोज फॉल्स प्रेज। तो उन्होंने कोर्टियर्स को रोका और बोला कि आप लोग सच में ये विश्वास करते हो? यस, दे आंसर इन वन वॉइस। सब ने एक आवाज़ में बोला। ऑल राइट, ठीक है फिर। देन प्रूव इट टू मी, प्रूव करो मुझे। टेल मी एटलीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड ऑलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू, अदरवाइज you will all incur our royal displeasure. You have till tomorrow morning to prove it. अभी आप लोग ऐसा बोल रहे तो ये आपको प्रूव करके देना पड़ेगा, अदरवाइज टुमारो मॉर्निंग तक आप सबको अपने इस राज्य के जो प्लेजर है सबसे डिस्प्लेजर कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट लुकिंग अनदर लुकिंग एट द कोर्टियर्स। उसके बाद अकबर कोर्ट से निकल जाते हैं किसी की तरफ बिना देखे। दे वर इन अ प्रॉपर फिक्स, वो सारे एक दूसरे को देख रहे थे, घूर रहे थे। दे थॉट एंड थॉट बट कुडंट थिंक ऑफ एनी सच थिंग, वो लोग सोच रहे थे पर कुछ भी ऐसा सोच नहीं पा रहे थे। इन द एंड दे वेंट टू बीरबल, लास्ट में वो बीरबल के पास जाते हैं। व्हेन बीरबल हर्ड दिस स्टोरी, जब बीरबल को ये सब पता चलता है, he told them not to worry। अकबर बोलता है, बीरबल बोलता है कि कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट वॉज फुल, एवरीवन वॉज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पूरा कोर्ट फुल था, सब देखना चाहते थे कि अभी क्या होने वाला है। वेल सेड द एम्परर, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन? क्या आप लोगों को मेरे क्वेश्चन का एक सही आंसर मिला? और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर, या आप लोग आज कोर्ट हमेशा के लिए छोड़ने के लिए रेडी हैं? जस्ट देन बीरबल स्टेप फॉरवर्ड एंड बोर्ड, लो प्लीज डोंट एंग्री विद दोज who think you are the greatest. They are certainly at least one thing. One thing that you can do but God Almighty cannot. सच में कुछ एक ऐसा है जो आप कर सकते हो। बीरबल आगे आते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और बोलते हैं कि आप गुस्सा मत करिए, सच में ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हो पर और कोई नहीं कर सकता। अकबर लुक्ड एट बीरबल थॉटफुली, अकबर बीरबल की तरफ बहुत ध्यान से देखता है। एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग, और पूछता है कि वो वन थिंग क्या है। व्हेन यू वांट टू पनिश समवन यू कैन बैनिश दैट पर्सन। अगर आप किसी को पनिश करना चाहते हो, आप अपने राज से उसको बाहर निकाल सकते हो। यू कैन थ्रो हिम आउट ऑफ योर किंगडम, आप अपने राज्य राजधानी सबसे बाहर निकाल सकते हो। बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड्स एवरीवेयर, बट गॉड का जो किंगडम है एक्सटेंड्स एवरीवेयर। द ऑलमाइटी कैन नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम। सो गॉड किसी को भी अपने किंगडम से बाहर नहीं निकाल सकता। अकबर्स फेस वॉज लिट अप विद स्माइल, अकबर का फेस थोड़ा सा लग रहा था, अकबर के फेस पे हंसी लग रही थी, हंसी दिख रही थी, मुस्कुराहट था। दैट वॉज वेरी क्लेवर बीरबल, उन्होंने कहा ये तो बहुत चालाकी की बात है। बीरबल, वाइल शोइंग हाउ आई वॉज एन एडवांटेज, while showing how I have an advantage, you have also shown that God is greater. I believe you. ने कहा आपने जब तुम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कितना महान हूँ, उसी समय तुमने ये भी दिखा दिया कि गॉड मुझसे भी कितनी ज़्यादा महान है, इसलिए मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अकबर वॉज सो प्लीज्ड विद द आंसर दैट ही फॉरगेव द कोर्टियर्स फॉर देयर स्टूपिडिटी। इस वजह से अकबर इस क्वेश्चन के आंसर से बहुत खुशी है और उन्होंने सभी को माफ़ कर दिया। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माय वीडियो।